बेटा एमबीए कर लो, बहुत स्कोप है, लाइफ बन जाएगी बिल्कुल। We have heard this dialogue so many times, but the fact is, it is true. MBA indeed makes your life. Hi, and welcome to IGNU Those for IGNU courses. And today we will be talking about the 10 reasons why you should consider MBA after graduation. So, what is MBA? MBA is is Masters in Business Administration. आपको इस कोर्स के थ्रू बिजनेस एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन सिनेरियो वर्क्स आपको वो पता चलता है. इट इज मोर टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल साइड, towards the more theoretical and practical side rather than the research application research side. So अगर आपको business start करना है or you are like planning to get into corporate, then MBA is the degree for you. तो अब हम बात करेंगे ऐसे 10 रीजंस की कि आपको एमबीए क्यों कंसिडर करना चाहिए. फर्स्ट, इट एनहांसेस योर नॉलेज एंड स्किल. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हर कोर्स it enhances our knowledge and skill. Like, why would you take a course if it does not enhances your knowledge and skill? What's so special about MBA? So the special thing about MBA is that in MBA you are being trained by individuals who are there in the field, who are there doing business, who are actually applying all of that you have learned in your academic year into real life. इन द सेंस कि जब आप कॉलेजेस जाते हो, एमबीए पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज जाते हो, वहां पर जो नॉलेज आपको दी जाती है, इट्स जस्ट नॉट अ नैरो नॉलेज. इट इज नॉट specific only to business or a particular stream. It has knowledge about different things. It has knowledge about market. It has knowledge about how your prices work. It has knowledge about your financial structures. It has knowledge about your business, accounting, HR. सब आपको बताया जाता है. एंड जो बताने वाले लोग हैं वो भी टॉप नॉच के होते हैं. यू हैव सो मेनी केस स्टडीज इन एमबीए कि आप ऐसे बैफल्ड हो जाओगे कि भाई ये क्या है, इतने सारा आपको क्वांटिटी होता है पढ़ने को, एक्सप्लोर करने को. दैट इज व्हाई इट increases the scope of your knowledge. As soon as you get out of your graduation, your knowledge I should I say spectrum आपका इतना होता है. But MBA helps you to stretch it out because you are studying so like diverse set of courses कि आपको मजा आ जाता है पढ़ने में. And then skills की जहां तक बात करें, MBA में practical approach बहुत ज्यादा होती है, केस स्टडी बेस्ड अप्रोच बहुत ज्यादा होती है. केस स्टडीज के थ्रू समझाते हैं आपको स्किल कैसे आपका बिल्डअप करें. ये सारी चीजें आपको एमबीए में पढ़ाई जाएगी. बी इट स्किल्स एज इन यू हैव मल्टी लाइक आप मल्टी स्किल्ड हो ही जाते हैं. टाइम मैनेजमेंट की बात करें, हाउ टू लाइक बी अ लीडर इन अ ग्रुप सेटिंग, और हाउ टू मोबिलाइज पीपल टू डू समथिंग. लाइक आपका ये हो गया कि आप फोकस कैसे चीजों पे कर सकते हैं, या फिर एक प्रोफेशनल अप्रोच कैसे रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये सारे जो स्किल्स हैं, बेसिक सॉफ्ट स्किल्स. हार्डकोर तो मैं बात ही नहीं करी, हार्डकोर तो आपको नॉलेज के थ्रू मिल ही रहा है, बट सॉफ्ट स्किल्स एज वेल यू आर एबल टू enhance, practice, and hone it through MBA. Next, you have getting a better job profile. तो बेटर जॉब प्रोफाइल आई विल टेक. मैं पहले इसे एक्सप्लेन करने से पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ. So many people have went like, "Ki, why are you not planning to do your MBA? It's like such a pretty thing on your CV." This is what you get when you say that I am doing an MBA, because it is good for your CV. When you give your resumes to different companies, to different organizations, when they see an MBA in your CV, there is already an edge to it. तो आप अगर एमबीए करेंगे तो आपको थोड़ा जॉब प्रोफाइल बेटर हो जाता है. एंड इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, देन आपका स्कोप और बढ़ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए. बिकॉज आज के टाइम पे एमबीए इज नॉट जस्ट ओनली like narrowed down to financial sectors, but it is present in each and every sector that you can imagine. एक एमबीए की नीड हर जगह पे है. एंड इंडिया में इट इज पॉसिबल कि आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज ले पाए. इंडिया में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीए डिग्री देती हैं, एंड उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी है. So it helps you get a better job profile. You are more eligible, you are more preferred. तो अगर आपने अपना एमबीए कंप्लीट करा है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से, देन बिलीव मी, एक अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन होना पक्का है. नेक्स्ट इज अर्निंग क्रेडिबिलिटी. सो
why, how does an MBA degree adds to your credibility, and why not any other degree? So when you're talking about an MBA degree, I mentioned soft skills. ठीक है, तो जब आप एमबीए डिग्री कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीए इज नॉट अ जोक। ठीक है, एमबीए डिग्री आप कभी भी मन किया कर दिया ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। गुड इंस्टीट्यूशंस हैव गुड एकेडमिक स्ट्रक्चर्स फॉर योर एमबीए, एंड व्हेन यू लाइक आप अपने उस कॉलेज से निकलते हैं, तो इट एड्स ऑन टू योर सीवी एज वी डिस्कस्ड। तो एक क्रेडिबिलिटी मिलती है कि हाँ, इस बंदे ने एमबीए करा है, इससे ये सब तो आता ही होगा। दिस आइडिया कि आता ही होगा, आई कैन ट्रस्ट हिम or her with this work, builds on when you are doing your MBA, because MBA allows you to first of all it brings us a lot of self confidence, it brings a lot of networking कि आप network अच्छे से कर पाते हो, you are able to sell your skills, you are able to persuade people कि भाई आप ये काम कर लो, because MBA also teaches you HR में भी आप जा सकते हैं MBA के थ्रू। So you have different आपको, because MBA has a diverse set of specializations or and topics that you can choose and study from, your skill set is also diverse। अगर आप एक नॉर्मल डिग्री वाले बंदे हैं, सो योर क्रेडिबिलिटी माइट बी restricted to a certain skill set or a certain perspective. However, when you are doing an MBA, you have a holistic perspective, because holistic perspective, and there's a lot much, and there's like much more skills that you develop, and it adds on to your credibility as a person, because आपका personality develop होता है। Second, your skill set becomes very good. That is why you earn a good credibility. Next, you have a higher salary again. So India में there is a lot of demand for MBA. People do pursue MBA in huge numbers, and there are companies जो रिक्रूट करती हैं। बाहर भी MBAs की काफी डिमांड है। तो आपका सैलरी जो है, लाइक MBA एज अ डिग्री गिव्स यू गुड सैलरी अगर आप बाकी डिग्री से कंपेयर करें, क्योंकि ये जो हायर सैलरी का सिनारियो है, ये आप बिकॉज यू आर so well equipped in different skill sets and different shades of subject, कि आपका स्कोप बढ़ जाता है चीजों को मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो यू गेट बेटर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड देयरफॉर योर सैलरी आल्सो इंक्रीजेस। तो आप जितना अपना टाइम दे रहे हैं इस कोर्स को, उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट में वापस मिल रहा है। टाइम सेविंग बेनिफिट्स, अब मैंने टाइम की बात उसमें कर दी। अब आप पूछोगे ये टाइम का क्या सीन है। हम एमबीए को सोचते हैं कि बड़ी रिगरस रिगरस डिग्री है, सब छोड़ छाड़ के एमबीए के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्या है ये। बट बिलीव मी, इंडिया में बहुत ज्यादा इजी हो गया है, आई शुड से एक्सेसिबल हो गया है एमबीए की डिग्री परस्यू करना। आप इग्नू में देख लीजिए, इग्नू गिव्स यू एन ऑनलाइन एमबीए कोर्स। तो आजकल ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग का जमाना है, एंड द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज सिमिलर टू द वंस दैट यू गेट इन फिजिकल यूनिवर्सिटीज। सो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे तो यूनिवर्सिटी नहीं मिली, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, या मुझे अपने ऑफिस जाना है, या मैं कॉलेज खत्म नहीं हो रहा तो मैं कैसे करूंगी। तो आप सिंपली इग्नू के थ्रू भी एडमिशन लेके एमबीए पढ़ सकते हैं, एज नहीं तो कोई और आपको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में अगर आपको अच्छा एमबीए कोर्स मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। बट याद रखिए, व्हेन यू आर परस्यूइंग एनी कोर्स फ्रॉम एन ओपन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, यू मस्ट इंश्योर दैट इज अंडर योर यूजीसी। तो प्लीज उसको देख के चलिएगा। बट यस, दैट इज वाई आप एमबीए जो डिग्री है इंडिया में ओपन एंड डिस्टेंस से कर सकते हो, तो आपका टाइम भी बचता है, आप अपना काम भी कर सकते हैं, साथ साथ आप डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब रही बात सेकंड थिंग, मल्टीपल सॉरी multitasking. So MBA helps you to multitask yourself. You become very professional and punctual with your work, as it is a professional course. It helps you build that aptitude and that discipline in yourself. तो आप जो भी काम करते हो उसे बहुत प्रोफेशनली करते हो, एंड प्रोफेशनलिज्म का सबसे पहला रूल इज पंक्चुअलिटी। सो यू आर एबल टू कंप्लीट योर वर्क एंड आप उसे पंक्चुअली कर पाते हो, बिकॉज यू आर एबल टू मल्टीटास्क योरसेल्फ कि अच्छा मुझे इस दिन में ये सारी चीजें करनी है, इस टाइम करनी है। एमबीए में वो आपको प्रैक्टिस लगी रहती है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, एंड कॉर्पोरेट सेटअप डज नॉट वर्क इन अ लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट, यू हैव एक्सपैंडिंग योर करियर अपॉर्चुनिटीज। तो एमबीए, एज मैंने आपको पहले बता रखा था कि एमबीए इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू योर फाइनेंस। एमबीए हमें एंटरटेनमेंट में चाहिए, हमें मेडिकल सेक्टर में चाहिए, हमें फाइनेंस सेक्टर में चाहिए, हमें एजुकेशन सेक्टर में चाहिए, क्योंकि फाइनेंसेस जो चीज होती है, या जो एचआर का रोल होता है, वो बहुत सारी जगह चाहिए। इट्स नॉट जस्ट इन कॉर्पोरेट दैट यू नीड एन एचआर,
It's not just in an office or like in a MNC that you need a finance manager or a finance head or anyone. भाई MBA का जो रोल है इट इज सो डाइवर्स कि वो कहीं भी जाके मोल्ड हो सकता है. एक प्रोडक्शन हाउस का फाइनेंस देखने के लिए यू नीड एन MBA. एक प्रोडक्शन हाउस को मैनेज करने के लिए यू नीड एन MBA. दैट ये एक एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ. सो योर करियर अपॉर्चुनिटीज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू corporates or MNCs. You have an array of ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. आप कोई भी जाके चूज कर सकते हैं एंड आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका पे भी ज्यादा आता है. नेक्स्ट यू हैव डिसेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. अभी ROI क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? सो जब हम एक कोर्स करते हैं हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ओके मैंने ये कोर्स करा, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतनी सैलरी देगा ये कोर्स, मुझे इतना नॉलेज देगा, मेरे करियर के लिए इतना बूस्ट मिलेगा. सिमिलरली दिस इज योर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस रिटर्न. अब MBA में क्या सीन है? आपने अपना टाइम एंड एफर्ट्स दिया, आपको क्या मिल रहा है? एक अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको एक क्रेडिबिलिटी मिल रही है. तो जो भी हमने अभी तक पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं ना, उस सब का क्यूमुलेशन है आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो आपने जितना इन्वेस्ट करा, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं MBA की डिग्री लेके, उतना अच्छा आपको उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या बोलो या पर्क्स बोलो या सैलरी पैकेज बोलो, कुछ भी जो भी आपको एक्सपेक्टेड था अपने डिग्री से वो सब वापस मिलेगा, provided you're doing it from a very good university and not like average or a mediocre university. Even if you're doing from mediocre university, then you must ensure that आपके skill set एक higher university वाले के बराबर में हो, because there's a lot of competition in MBA as well. Next, enabling opportunities for networking. So MBA, the idea of MBA is कि how you manage business and administration. बिजनेस में क्या चाहिए होता है कि when you're cracking any deal in business, you should know how to persuade your the other party or your employer or your employee, whosoever it is. Persuasion, negotiation, and being smart, not just hardworking. Being smart is very important. So ये सब कैसे होता है? जब आप connections build करते हैं, जब आप interact करते हैं. So in your universities as well, your professors, the people who your guest lecturers, or the case studies that you do help you to connect with people. LinkedIn is a great place. तो आप जहाँ पर अपना नेटवर्किंग कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे आपको MBA वाले भी मिलेंगे who do networking वहां से. एंड बिलीव मी, नेटवर्किंग टेक पीपल बहुत ऊपर. ठीक है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको करियर टिप्स चाहिए, आपको करियर एडवाइस चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, नेटवर्किंग इज द की टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो MBA के थ्रू, बिकॉज यू आर एबल टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, आपको नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाता है. नेक्स्ट यू हैव फैसिलिटेटिंग अ करियर डायरेक्शन. तो सपोज आपने एक कंपनी ज्वाइन करी, MBA करने के बाद आपने एक कंपनी ज्वाइन करी, आपने मिड जूनियर लेवल से स्टार्ट करा, धीरे धीरे आपने अपना सीनियर लेवल पे आए. देन यू रियलाइज कि मे बी इट्स नॉट फॉर मी, दिस कंपनी इज नॉट फॉर मी, आई थिंक आई शुड गो टू मे बी अ डिफरेंट सेक्टर. तो आप जा सकते हैं, दैट्स द पॉइंट. You can change your career direction or the way or the position as well. You have that flexibility in while doing an MBA कि आप, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, आपके पास स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत है. आपने अगर आज सपोज कॉर्पोरेट ज्वाइन करा है तो आप जाके किसी NGO के भी फाइनेंसिंग देख सकते हैं, फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, या किसी दूसरे मान के चलिए आप मेडिकल, एक मेडिकल हॉस्पिटल के आप HR हेड बन सकते हैं. सो दिस इज हाउ फ्लेक्सिबल यू आर. आप मार्केटिंग में जा सकते हो, यू कैन चेंज योर करियर फ्रॉम फाइनेंस हेड टू अ मार्केटिंग हेड. आपके ऊपर है हाउ टू चेंज इट, हाउ डू यू फील कि वेदर दिस जॉब इज अप्रोप्रिएट फॉर यू. इन दिस वे आपके पास ऑप्शन है फ्लेक्सिबल होने का थ्रू MBA, बिकॉज इट टीचेस यू मार्केटिंग, ब्रांडिंग, योर HR मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें आप इसमें ही कर लेते हैं. तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, डायरेक्शन चेंज करने की भी प्रोविजन ज्यादा है. And finally, we have developing a broader perspective. So, in when when you see a businessman or someone who works in a corporate setup or someone in administration, what one thing that they have in common is solution oriented approach to any problem. तो आप एक
छोटे से चाय वाले को देख ले टपरी के वहां, या फिर एक कंपनी के बड़े से कंपनी के मालिक को देख ले, उन सब में दिस बिजनेस पर्सपेक्टिव वाले लोगों में ना एक बात कॉमन होती है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड है वो बहुत अच्छा होता है। कि अच्छा चलो उस चाय वाले ने सोचा कि यार मेरे वहां तो सुबह 8 बजे की बहुत भीड़ आती है, तो मैं सोच रहा हूँ खाना भी लगना शुरू कर दूं, लाइक थोड़े स्नैक्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ही करना बनाना शुरू कर दूं। सो दिस वो अपना वो प्रॉफिट बढ़ा रहा है। आपने तो एंड सिमिलरली अगर आप एक दूसरे बड़ी कंपनी को, कोई बड़ी कंपनी का हेड है, उससे अगर प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो वो उस हिसाब से सोचेगा। सो द आइडिया इज कि ये लोग ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं टू मीट देयर टारगेट गोल्स। एंड आउट ऑफ द बॉक्स सोचना is only possible when your perspective is not just like this, but it goes beyond what you are studying and you're teaching. So आप नेटवर्किंग करते हो, व्हेन यू आर मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, आप उनके पर्सपेक्टिव जानते हो तो आपका एक पर्सपेक्टिव बढ़ता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने पर्सपेक्टिव से, जो सपोज आपने किसी से बात करी, आप उसे अप्लाई करके आप अपना बिजनेस या जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी टास्क आपको गिवन है उसे आप और डेवलप कर पा रहे हो। दैट इज वाई व्हेन यू आर डूइंग एन एमबीए, आपको जो पर्सपेक्टिव है, इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव और एचआर पर्सपेक्टिव, इट इज अ होल how do I say, a holistic perspective towards any problem, because आप इतने solution oriented हो जाते हो। तो इसी के साथ हमारे ये 10 रीजंस खत्म होते हैं। आप आई होप आपको समझ आ गया हो कि कैसे डिसाइफर करना है कि वेदर इट इज गुड फॉर यू और नॉट दिस कोर्स। 10 रीजंस थे, और भी ज्यादा रीजंस हैं। प्लीज सर्च अप करिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि मुझे एमबीए करना चाहिए, देन यू कैन ऑब्वियसली रीवॉच द वीडियो और अपने आप खुद सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एमबीए आज के टाइम पे इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। कॉर्पोरेट्स बिकॉज the whole country and the whole world is turning into a very corporate like system, तो MBA की डिमांड अभी भी रहती है। So if you're interested then please go for it. अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि फिजिकली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने का, you have IGNOU as an option. It's a very good option. The quality of education is similar to what you get in the physical universities. तो आपको उसकी टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। Otherwise, if you have any doubts or anything, then you can contact us through the IGNOU Dost app. आप उसे Play Store या App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। Otherwise, you can call on this number 7594939297। हम आपको इग्नू कोर्सेज के लाइव रिकॉर्डेड सेशंस देते हैं, वैल्यू एडेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वी हेल्प यू इन असाइनमेंट्स एंड मेंटरशिप एंड करियर प्रोग्राम्स एज वेल। So if you have any doubt whether or not to choose MBA as well, so you can contact us, and either you can put it down in the comment section below or download the app. तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी मिल गई हो। एक बार प्लीज 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 वीडियो को देख लीजिए। पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।